Hello students, today we will discuss the psychometric processes. Psychometric processes are the sensible heating, cooling, humidification, dehumidification, cooling and dehumidification, heating and dehumidification, cooling and humidification, heating and dehumidification. And these are the psychometric processes. So one by one we will discuss here only the four psychometric process. These four are the basic and very important process, and remaining are the combination of these four processes. Okay, so number one is sensible heating. Sensible heating, you all of you know that the heating, when we heat the anything, then the temperature will increase. If temperature will increase, then their enthalpy will increase. So the in the psychometric process, if we draw the psychometric chart, the psychometric process, here is dry bulb temperature and here is specific humidity. So the sensible heating process is the process in which humidity, specific humidity remain constant and dry bulb temperature will increase. So like this. This is the process of the this is the process of sensible heating in which temperature will increase. So the dry bulb temperature 0.1 to 2 will increase. So the T D1 to T D2, or specific humidity W1 is equal to W2 will remain constant. Okay, we can calculate the enthalpy from H1 to H2. Enthalpy will increase. So you can see here the diagram. This is the dry bulb temperature, this is the specific humidity. So process 1 to 2 is the process of the sensible heating, in which dry bulb temperature will increase, enthalpy will increase, specific humidity remain constant, and the relative humidity will increase. Relative ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज फ्रॉम 0.1 to 2 लाइक दिस. ओके, तो यहाँ पर जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है सैचुरेटेड कर्व की तरफ, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है. यहाँ इधर आपकी डिक्रीज होती जाती है अवे फ्रॉम द सैचुरेटेड कर्व. द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज. ओके, सो द रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, that is the phi 1 and phi 2. The heating of the air without any change in its specific humidity is known as the sensible heating. Sensible heating, so the heat added to the air or heat absorbed by the air is equal to how much heat absorbed, that is enthalpy will change from H1 to H2. So the heat absorbed will H2 minus H1. So H2 minus H1 will be the heat absorbed. इस H2 माइनस H1 को हम लिख सकते हैं फॉर द ड्राई एयर एंड मॉइस्चर कंटेन, वो वाटर वेपर. सो फॉर द ड्राई एयर चेंज इन एंथैल्पी CPA, temperature will change from TD1 to TD2. So that change in temperature difference plus change in enthalpy of the water vapor will remain in the superheated form. So the CPS TD2 to minus TD1, this is the water vapor contained. Okay, so the water vapor, if we multiply by mass Ma and mass Mb, और अगर हम Ma कॉमन ले लेंगे, टोटल Q इज द पर केजी, इसको M A से मल्टीप्लाई कर दोगे या M से मल्टीप्लाई करोगे, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. M is equal to Ma, where M is the mass of the moisture. Mass of the moisture is approximately mass of the dry air, because the water vapor content will very less in comparison to the dry air. So mass of the moisture can be written as Ma. So if divided by the Ma, so this will be cancelled out. This will be Mb upon Ma. So this will become Mb upon Ma will be W. Okay, Mb upon Ma will be W. So this will be Cp T2 Td2 minus Td1 M W times Cps है, this will be Cps. Okay, Td2 minus Td1. So this can be written as, because Mb upon Ma
जो आ रहा था वो हमने डब्लू लिख लिया है। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ इसको, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा है। ओके, तो CPA 1.005 ये भी हम बता चुके हैं आपको इससे पहले वीडियो लेक्चर में, एंड CPS इज़ 1.9। सो दिस इक्वेशन TD2 माइनस TD1 विल बी कॉमन। So 1.00 plus W 1.9 times W is specific humidity, or we can retain its CP TD2 minus TD1 will be common. So this will be common. This will be CPA plus W into CPS. This is the specific humid specific heat. Okay, CPM, and the value of this is 1.002 kilojoule per kg Kelvin. Okay, so it can also be written like this. Okay, 1.00 TD2 minus TD1. So this is the sensible heating in which the, अगर आपको डिस्क्राइब करने को आ जाए ये प्रोसेस इज सेंसिबल हीटिंग, सेंसिबल कूलिंग, ह्यूमिडिफिकेशन, डिह्यूमिडिफिकेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, एनी टू, सेंसिबल हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन, कूलिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन। तो आप इसको चार्ट से बहुत आसानी से आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, और आपको पता होना चाहिए सेंसिबल हीटिंग में क्या रहता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहती है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज होता है और आपकी एंथैल्पी इंक्रीज होती है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। बस इनको पॉइंट्स में लिख दीजिए, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्ट जरूर बनाना है। ओके, साइकोमेट्रिक चार्ट। तो नेक्स्ट इज ये सेंसिबल हीटिंग होती कैसे है। आपने फिर वहाँ पर सेंसिबल हीटिंग की डेफिनेशन देख ली थी, वाट कैसे है। हम एयर को, आप TD1 पे है, उसको हम पास कराएंगे एक ऐसे कॉइल से जिसका टेम्परेचर आपका होगा TD3। ओके, और जो फाइनल एयर निकल रही होगी उससे पास होने के बाद उसका टेम्परेचर होगा TD2। अगर हम साइकोमेट्रिक चार्ट पे देखें तो ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट बीच में 2 है और ये पॉइंट 3 है। तो पॉइंट 3 का जो टेम्परेचर, दिस इज द पॉइंट 3, दिस इज द पॉइंट 2, दिस इज द पॉइंट 1। ये जो एयर निकल रही है 1 पॉइंट से 2 पॉइंट पे निकल रही है और 3 पॉइंट पे ये कॉइल है, मतलब कॉइल का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है। अगर हम बहुत कम टेम्परेचर की एयर को इस कॉइल से पास कराएंगे तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगा। ये एयर आपकी जो पॉइंट 1 से पॉइंट TD1 टेम्परेचर से पास हो रही है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, लेकिन उसके बराबर नहीं होगा जो TD3 है, जो कॉइल का टेम्परेचर, उससे कुछ कम रह जाएगा क्योंकि वो पास होके निकल जाएगी, इतना कॉन्टैक्ट में नहीं है कि दोनों का टेम्परेचर इक्विलिब्रियम में आए, तो ये TD2 पे वापस बाहर निकल जाएगी। तो दिस इज़ द पॉइंट 1, दिस इज़ द पॉइंट 2, दिस इज़ द पॉइंट 3। यहाँ पर जो कॉइल का टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है फाइनल ईयर के एग्जिट टेम्परेचर से। ओके, तो इस तरह से हम इसकी हीटिंग कराते हैं। सेंसिबल कूलिंग, यू कैन सी द सेंसिबल कूलिंग। तो आई होप दिस, ये आपको हीटिंग समझ में आया होगा किस तरह से हीटिंग हो रही है। कॉइल, एक ऐसी कॉइल से पास करा रहे हैं एयर को कॉइल के ऊपर से जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, जो एयर इंटर कर रही है इसमें चैम्बर में उसका टेम्परेचर कम है, और वो हायर टेम्परेचर TD3 से कुछ हीट लेगा और उसका टेम्परेचर TD2 हो जाएगा और वो एयर एग्जिट हो जाएगी, लेकिन TD2 इज़ लेस दैन TD3। ओके, जो टेम्परेचर बाहर निकली वो TD3 के बराबर नहीं होगी। ओके, क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर एयर कांटेक्ट में रुक नहीं रही है, इक्विलिब्रियम अचीव नहीं कर रही है, वो उससे पास होती हुई चली जाएगी। तो जितनी हीट उस समय वो एक्सट्रैक्ट कर पाएगी कॉइल से उतना ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन TD3 के बराबर नहीं होगा। अगर वो वहाँ पर रुकी रहती वहाँ पर तो इक्विलिब्रियम अचीव होता तो TD3 के बराबर हो जाता। ओके, यहाँ पर क्या है, सेंसिबल कूलिंग अपोजिट टू द सेंसिबल हीटिंग। सेंसिबल कूलिंग में आपका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहाँ पर मैंने H लिख दिया, दिस इज़ द TD2 एंड दिस इज़ द TD1। ओके, टेम्परेचर यहाँ पर एंथैल्पी नहीं होगी, एंथैल्पी हम यहाँ से देखेंगे। यहाँ भी आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कांस्टेंट रहेगी, टेम्परेचर यहाँ पर आपका डिक्रीज होगा, TD1 से TD2 होगा, और एंथैल्पी भी आपकी डिक्रीज होगी 0.1 से 0.2। अब आपका 0.1 ये है और 0.2 ये है। ओके, फॉर द कूलिंग ये आप बस याद रखना है, दिस इज़ द टेम्परेचर नॉट द एंथैल्पी। यहाँ पर आपका TD2 है ये, और यहाँ पर आपका TD1 है। ओके, द कूलिंग ऑफ द एयर विदाउट चेंज इन इट्स स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज़ नोन एज द सेंसिबल कूलिंग। इसमें एयर को कूल कर रहे हैं, ऑब्वियस बात है टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, एंथैल्पी भी डिक्रीज करेगी। तो हाउ मच द हीट रिजेक्टेड,
इज H1 माइनस H2। इसको भी हम वही लिख सकते हैं CP, ड्राई एयर के लिए CP ये, TD माइनस T1, और वेट एयर के लिए ये। तो इसको भी आप उसी तरह से लिख सकते हो। अगर मास के टर्म्स में लिखो तो ड्राई एयर का मास Ma है, CPA टेम्परेचर जो चेंज हो रहा है आपका, TD1 ज़्यादा है, TD2 कम है, तो टेम्परेचर डिफरेंस पॉजिटिव, MB CPS टेम्परेचर डिफरेंस TD1 माइनस TD2। ओके, ये जो इज इक्वल टू क्या है, ये Q इंटू M। M क्या है, MA लिख सकते हैं, M को कई बार डिस्कस हो चुका है। अगर M इधर ले जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये बचेगा CPDT, और यहाँ पर क्या हो जाएगा MA। इस MB अपॉन MA क्या होता है आपका, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, सो दिस इज द CP। यहाँ पर M गायब हो गया है, यहाँ पर CPA TD माइनस T1, और यहाँ पर W आ गया CPS TD1 माइनस TD2। ओके, वही बात है, CPA की वैल्यू 1.005 और CPS की वैल्यू 1.9 और TD1 माइनस TD2 कॉमन ले लिया है। और हम इस तरह को क्या क्या लिख सकते हैं, इस तरह से CPA TD1 माइनस TD2 हमने कॉमन लिया तो ये आ गया, और CPA प्लस W CPS, इसको हम ह्यूमिड स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, इसको हम CPM लिखते हैं, और ये 1.022 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। या हम ये फॉर्मूला याद कर लें। ओके, होती कैसे है ये, जैसे सेंसिबल कूलिंग होती, हीटिंग हुई थी, ऐसी कूलिंग होगी। एक कॉयल है, वहाँ पर हमने स्टीम पास कराई थी, इस कॉयल से एक हीटिंग, यहाँ पे हम रेफ्रिजरेंट एक कूलेंट पास कराएंगे। इसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा आपका, सबसे कम होगा। सबसे कम से मतलब जो एयर इंटर हो रही है और जो एयर एग्जिट हो रही है, पॉइंट 1 पे इंटर हो रही है, पॉइंट 2 पे एग्जिट हो रही है, पॉइंट 1 पे इंटर हो रही है, पॉइंट 2 पे एग्जिट हो रही है, इसका टेम्परेचर उससे भी कम है जो एयर एग्जिट हो रही है कूल होके। ओके, तो इसका टेम्परेचर TD1 पे आपका हाईएस्ट टेम्परेचर पे एयर इंटर करेगी, वो कूलिंग बॉडी के कांटेक्ट में आएगी, इस कॉइल के कांटेक्ट में आएगी, और अब कुछ हीट ये रेफ्रिजरेंट इससे एक्सट्रैक्ट करेगा पॉइंट 1 से जो हीट इंटर हो रही है। लेकिन ये पूरी तरह से अपने इक्विलिब्रियम में नहीं ला पाएगा, क्योंकि एयर फ्लो हो रही है, एयर कांस्टेंट नहीं है उस कॉइल के ऊपर। अगर कांस्टेंट रहेगी तो हीट कॉन्टीन्यूसली एक्सचेंज होती रहेगी, और कब तक एक्सचेंज होगी, जब तक दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों इक्विलिब्रियम में नहीं आएंगे, क्योंकि हीट एयर फ्लो हो रही है, एयर फ्लो होते हुए इससे निकल जाएगी, और कुछ जो टेम्परेचर वो अपना डिक्रीज़ कर पाएगी, वो कर पाएगी, यानी जितना टेम्परेचर वो ये रेफ्रिजरेंट एक्सट्रैक्ट कर पाएगा इस एयर से, उतना वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, और उसके बाद ये कूल होके पॉइंट 2 से एग्जिट हो जाएगी। तो पॉइंट 1 का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है, पॉइंट 2 का उससे कम, पॉइंट 3 का सबसे कम, मतलब कॉइल सबसे कम टेम्परेचर पे होगी इन तीनों में। और ये कहाँ तक कूल कर सकते हैं, इस सैचुरेटेड कर्व तक, मतलब यहाँ पर तक कूल होने के बाद ये क्या है, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। अगर इस टेम्परेचर के नीचे हम कूल करेंगे, इसके बाद भी कूल करेंगे, तो इसका कंडेंसेशन शुरू हो जाएगा, जो वाटर वेपर्स हैं। ओके, यहाँ पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी कांस्टेंट रहती है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है, और एंथैल्पी भी आपकी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। ओके, तो दिस इज़ द सेंसिबल कूलिंग। सेंसिबल हीटिंग और सेंसिबल कूलिंग में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ में आया होगा। सेंसिबल हीटिंग में टेम्परेचर, ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी दोनों में कांस्टेंट होगी। सेंसिबल कूलिंग में ड्राई बल्ब टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, और सेंसिबल हीटिंग में ड्राई बल्ब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। सेंसिबल हीटिंग में एंथैल्पी इंक्रीज़ होगी, सेंसिबल कूलिंग में एंथैल्पी डिक्रीज़ होगी। ओके, सेंसिबल हीटिंग में आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो डिक्रीज़ होगी 5, और सेंसिबल कूलिंग में रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। ओके, नाउ द ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन इज द प्रोसेस in which we add the water content at the constant temperature। कांस्टेंट टेम्परेचर पे हम वाटर कंटेंट ऐड करेंगे, मतलब स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी हम इंक्रीज़ कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ हो रही है, ये इस तरह से प्रोसेस होता है। साइकोमेट्रिक चार्ट है ये आपका, लाइक दिस। यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक पॉइंट 1 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, पॉइंट 2 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W2, पॉइंट 1 पे स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी W1, और ये क्या है, TD1 इज इक्वल टू TD2। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी आपकी इंक्रीज़ कर रही है, और अगर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर रही है तो यहाँ पर phi1 होगा, और यहाँ पर phi2 होगा, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज़ करेगी, क्योंकि रिलेटिव ह्यूमिडिटी सैचुरेटेड कर्व की तरफ
इंक्रीज होती है और इधर आपकी कम होती है। और आपकी एंथैल्पी एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, दिस इज द एंथैल्पी H1 और H2, तो एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी आपकी। ओके, तो आप इसको देख लीजिए यहाँ पर सेंसिबल हीटिंग सॉरी ह्यूमिडिफिकेशन हो रहा है, इसका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो रही है 0.1 से 0.2 पे। ओके, तो ह्यूमिडिफिकेशन इज एडिशन ऑफ मॉइस्चर टू द एयर विदाउट चेंज इन इट्स ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ड्राई बल्ब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा और इसके मॉइस्चर कंटेंट आप इसमें बढ़ेगा। जब मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होगी। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है, तो क्या आएगा? सेंसिबल हीटिंग तो हो नहीं रही है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। सेंसिबल हीटिंग में टेम्परेचर चेंज होता है, इंक्रीज होता है, लेकिन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स इसमें क्या है? लेटेंट हीट। तो दैट लेटेंट हीट इज H2 माइनस H1। अगर इसको HFG और मल्टीप्लाई बाई W2 माइनस W1 भी आप लिख सकते हैं आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी के टर्म्स में। ठीक है, डिह्यूमिडिफिकेशन is the opposite to the humidification. Dehumidification is the decrease in the moisture content at constant temperature, the removal of the moisture from air without change its dry bulb temperature. ओके, तो ड्राई बल्ब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वो सेम यहाँ पर भी है। एंथैल्पी क्या होगी? 0.1 पे ये है, 0.2 पे ये है, डिक्रीज होगी। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.1 पर, सॉरी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 0.1 पे ये है, 0.2 पे ये है, तो ये भी डिक्रीज होगी। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी 0.1 पे ये है, 0.2 पे ये है, तो ये भी डिक्रीज होगी। ओके, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कूलिंग हो रही है, एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सेंसिबल कूलिंग तो है नहीं, तो इसमें क्या होगा? लेटेंट हीट होगी। लेटेंट हीट आपका क्या होगा? H1 माइनस H2, दैट इज HFG मल्टीप्लाई ऑफ द वाटर कंटेंट या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ओके, वेपर सॉरी, तो क्या डिफरेंस है ह्यूमिडिफिकेशन डिह्यूमिडिफिकेशन? दोनों में ही टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी में आपकी जो स्पेसिफिक ह्यूमिडिफिकेशन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है, डिह्यूमिडिफिकेशन में स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। इस यहाँ पर आपकी एंथैल्पी इंक्रीज होती है ह्यूमिडिफिकेशन में, डिह्यूमिडिफिकेशन में एंथैल्पी डिक्रीज होती है। यहाँ पर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है 0.1 to 2, यहाँ पर आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज होती है। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ह्यूमिडिफिकेशन एंड डिह्यूमिडिफिकेशन। इन द नेक्स्ट लेक्चर I will discuss the combination of any two, and those combination are very important, and the numerical problem will come on those combination. So thank you, students.